अमित, आपके फर्स्ट अर्बन प्लानिंग प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ा अगर कुछ बता पाए तो। So first urban planning assignment was in Gujarat. I worked on development plan and town planning schemes for special investment regions for Dholera. कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आप हाईली डिसअपॉइंटेड हुए हो? Multiple. सो ऐसा आप एग्जांपल अगर कोट कर पाए जहाँ पे यू थॉट दैट ओके दिस वाज नॉट गुड और दिस डिडंट गो एज पर माय प्लानिंग. So nothing in particular, but okay, like if I have to say one, again in early days, I worked, rigorously and very hard on preparing a waterfront development project for Bhopal, Okay. Upper Lake. It was a competition assignment and we did not win it. So that was, a little heartbreaking कि नहीं कर पाए, but yeah, that was. So urban planning was always your passion, or no, you came just by destiny to this Completely profession? by accident. Okay. Completely by accident. It was not planned at all. Any project which you were very happy and satisfied about? Yeah, the recent one that we as an center are working with government of Rajasthan, where government of Rajasthan have started working on land pooling schemes, which is on the lines of town planning schemes in Gujarat. And I really feel proud to be instrumental in helping the state to prepare their first TP scheme. So very happy with it. Yeah. Like I can see the roads being implemented on ground, and also being helpful in terms of when a state is taking up something new and you are helping or being instrumental in that. It's a proud moment. Welcome to Business and Beyond podcast, and we thank you for being our guest today. मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी. यू आर लाइक स्पेशलाइज्ड इन स्पेशल प्लानिंग इनटू अर्बन डेवलपमेंट. तो आप उसके बारे में थोड़ा सा, एक तो पहले हमारे लाइक व्यूअर्स का बता पाए स्पेशल प्लानिंग होता क्या है, एंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स डू यू वर्क स्पेशली? All right, thank you. The pleasure is all mine. And yeah, so I am basically an urban planner, so to say. I did my bachelor's in architecture. I completed my bachelor's around 2007, and in 2009 I joined master's in urban planning, and I completed that in 2011. So I have been practicing urban planning since past almost 15 years now. What is urban planning? Okay, if I have to say that in a very layman term, we see a city, right? So whatever is inside of a plot, like we see a plot boundary, whatever is inside of a plot, the design decisions are predominantly taken by architect, right? Whatever is outside of that plot boundary, primarily the urban planner, or so to say a planner, not only urban planner, but transportation planner, infrastructure planner, and then there are multiple specializations. So all these people come together and help shape a city. Okay. Yeah. And what kind of projects have you completed so far? If you can name those projects, आप थोड़े से उस projects के बारे में बता पाए आपके पूरे experiences में. My experience has predominantly been in spatial planning. So basically the planning work that deals with land. Like planning also dwells in infrastructure, transportation, non-spatial aspects, social aspects, and housing and multiple other things. But my experience has been primarily been in spatial planning. So when I say spatial planning, it ranges from which is city level plans. So you prepare master plans or development plans for a city. B, micro level plans, which is like neighborhood level plans. So for example, let's say there's an area, let's say South Bhopal. You need to design that area. Where will the roads go from? What would be the height of the buildings? Where will a commercial come? Where will a garden come? So there are tools for this, which is town planning scheme, local area plan. So these are the kind of works that I have done. C, waterfront development projects. So multiple states and multiple cities I have worked on either riverfronts or lakefronts or those kind of assignments. So which falls more in urban design kind of a domain. D, statutory documents. So acts, policies, regulations, revising them, helping governments in formulating them. So yeah, primarily this 4 categories you can say that I have primarily. Especially I understood, Amit, from you is if you said 3 categories
specifically. The one is like the huge area development, which you are saying that if there is a new town planning, Right. so you develop that area regarding the urban planning and everything. The second, the urban planning projects Right. you talked about, right? How these two are different from each other? If you can just So, let me know. they are not. They are very different in terms of scale and also in terms of the tools that you use to make them. But in a way, a micro plan, a micro level plan, is more of an extension or a tool to implement a macro level plan. Okay. मतलब इसको मैं थोड़ा और Please. सिंप्लीफाई करके बताऊं कि Please. मानो हमने एक डेवलपमेंट प्लान बनाया एक सिटी का. नाउ आई हैव मेड द प्लान, आई हैव ड्रॉन सम रोड्स in that plan. Then I have put a garden in that plan. Then I have put a location where some hospitals and other things will come. But how will these things get implemented? You know, so first thing, I need land to make those roads. You know, I need land to make those gardens. So the micro level plan is a tool. Okay. Where I pool land from people. You know, where I'll go to them and I'll tell them, okay, you contribute some land to me, you know, maybe 30%, 40%, and usme se I'll make the gardens, I'll make the locations for fire tenders, you know, hospitals, roads and other things. And then बाकी का जमीन मैं आपको वापस दे दूंगा जहां पर you can go ahead with your development on that land. So जितना मैं समझ पा रही हूँ, like pulling the land is because पहले कोई छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है या कोई छोटा सा गांव है, विलेज, उसको आप टाउन में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं उस एरिया को, तो वहां पे there are people who are owning already the land. Right. And that land we are going to pull. Yes. Regarding the urban planning. For urban. तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? You know, urban planning is basically a state subject. So therefore ये जो procedure है, it's not common across India. True. It varies state to state. हर state का अपना एक mechanism है to pool that land. इसमें pioneer states अगर हम थोड़ा बोल सके, so Gujarat and Maharashtra are like pioneer in urban planning. Like we have some acts which are almost more than 70 years old now. So urban planning में even nationwide we can say that benchmark states are like Maharashtra and Gujarat. Okay. So we have been consistently pooling the land from people through town planning scheme mechanism and other mechanism where it's more of एक joint वाला चीज हो जाता है कि you know लैंड ओनर और गवर्नमेंट साथ में मिलके एक एरिया को डेवलप करते हैं. लैंड ओनर contributes land and government brings in the infrastructure. Okay. But this is predominantly Gujarat and few other developed states. बाकी सारी जगहों पर अब तक जो होता था primarily वो it used to happen through acquisition. Okay. Acquisition. So central government के पास एक act है, Land Acquisition Act, which is revised in 2013. जो which became LARR, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act. Under that, what they do is they can simply approach an individual कि you know we are making this road and we need the land, so उसके बदले में we will give you compensation and you give us the land. So primary model, if you say majority of the states, they were going ahead with this model. But then few of the developed states, so to say, were going ahead with the land pooling. Because what I realize is when you develop the urban town or anything, and when you pull a land, those are mostly the agricultural lands, right? Yes. And people are farming on those lands. So is it like a clash kind of situation? Sometimes what happens is they are very happy with their own lands and farming because their major chunk is now going to the non-agricultural part and the development part, and their agricultural income might get disturbed and impacted on that part. So is kind of clashes come into the picture when you try to do the urban. There are, if it is not thought through. So typically like government भी कहीं पर या even UDA या वो लोग भी कहीं पर TP scheme बनाने का कब सोचते हैं when there is a demand. Okay. Most cases it will be those ways. Demand कहाँ से पता चलेगा कि land rates बढ़ेंगे. There will be lot of development permissions. People will come for कि बहुत सारे developers एक particular area में development permissions के लिए आ रहे हैं. True. Land rates बढ़ रहे हैं. So then this are some hints for the authority. Okay, now it's time okay, we need to go ahead and make a planned intervention over here because otherwise it will be haphazard. You know, just to again give you a very small example. If you remember 2003 का जो अहमदाबाद का DP था, उसका boundary used to end just ahead of Bhopal. Yeah.
एंड उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा डेवलपमेंट बोपल घुमा में हो गया, बट इट वाज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ ओडा. ओके. So it was all haphazard kind of a development. And so to avoid those kind of instances, now government becomes a little bit proactive. Okay, they just see some opportunity here, यहाँ पे अब थोड़ा सा development हो रहा है, so let's just go ahead and do a TP scheme. And again, TP scheme is a very consultative process. बहुत ज़्यादा consultative process है. Like कंसल्टेटिव टू एन एक्सटेंट के हर एक लैंड ओनर के साथ कम से कम आपको 3 से 5 बार मिलके उसके साथ बैठ के बात करना पड़ेगा. True. So, like by the nature of it or by the statutory provisions, it is very landowner उसके साइड पे रह के बात करता है मॉडल. True. I understand. But when you plan a TP, तो वो सबसे पहले सिटी लिमिट के अंदर उसका म्यूनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाता है, या फिर वो इट एक्ट्स एज अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट और इट एक्ट्स एज अ डिफरेंट विलेज और उसका वहां से कंट्रोल होता है, या फिर और बाद में वो मर्ज होता है? आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट. बाद में भी हो सकता है. सो अगर मैं इसका थोड़ा इंस्टीट्यूशनल हायरार्की अगर आपको समझाऊं, तो अगर हम जैसे अहमदाबाद का एग्जांपल लें, तो देयर आर टू प्रीडोमिनेंट बॉडीज, AMC, ODA. Right? True. AMC takes care of the municipal corporation limits. ODA's powers, so to say, in terms of planning, goes a little beyond the AMC boundary as well. Like AMC का boundary अभी, if I am correct, it is somewhere around 600 square kilometer. Vis-a-vis ODA is around 1200 square kilometer. Double है इसका area. So the way it works is कि outside of AMC area, ODA area में ODA को लगता है कि ये particular area में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रेशर है. सो देन दे विल डू अ TP स्कीम देयर, दे विल ले डाउन द इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें बनाएंगे, एंड व्हेन द लिमिट एक्सटेंड्स, तो देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ AMC. So just to pinpoint and give you an example, the place where I live right now, South Bhopal, जब वहाँ पे TP स्कीम बना था, it was not part of AMC. It was part of Bhopal Ghuma Nagar Palika, right? But now it is all part of AMC. So वो जो गार्डन ओडा ने बनाया था उस टाइम पे वो ओडा का था, ये भोपाल घुमा नगर पालिका का था, but now it is AMC garden. So as the city limit expands, slowly and slowly these things start to get merged within the city limits. So again my question is, when we do this kind of mergers, right, the two municipality mergers or two authorities merger, when you do the town planning, so I think the sewage lines getting merged, because there is lots of development of transportation infrastructure, and even the sewage pipes and lines and water facility and electricity all. So how they shape up? Again, I can answer this under two parts. One is provision of infrastructure, second is maintenance, right? So मेंटेनेंस वाला जो काम है वो प्रीडोमिनेंटली थर्ड या तो टर्शियरी गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और उसी लिए वो लोग उसका टैक्स कलेक्ट करते हैं. ODA कैन नॉट कलेक्ट टैक्स बिकॉज इट्स नॉट अ गवर्नमेंट. उनका काम यहाँ पर खत्म हो जाए. सो ओके, लेट मी टेक अ वेरी पिन पॉइंट एग्जाम्पल कि भोपाल घुमा नगर पालिका वाला हमने जो TP स्कीम का बात किया, पानी का पाइपलाइन डालना ये ODA का काम. ओके. उसके अंदर पानी डालना ये भी शायद ODA का काम. उसके अंदर रेगुलरली पानी जाता रहे ये ध्यान रखना, वो पाइप कभी फटे नहीं ये ध्यान रखना, ये AMC का काम. ओके. सो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पार्ट इज ऑलवेज द टर्शियरी लेवल गवर्नमेंट. तो जब AMC नहीं था तो वो भोपाल घुमा नगर पालिका देखेगा. लाइक रास्ता बना दिया, बट वो रास्ता रोज साफ हो रहा है कि नहीं, उसके मीडियंस प्रॉपरली चल रहे हैं कि ठीक ठाक है कि नहीं, वो रास्ते में कहीं खड्डे है कि नहीं, that is to be taken care of by the tertiary level government, which is either Bhopal Ghuma Nagar Palika या AMC या whichever is the governing body. Provide करना ODA का काम था. So उन्होंने वो बना दिया, then their job is over there. Then they'll move forward and make another TP scheme. Got it. So maintenance or running the town planning schemes is mainly the municipal corporations, and making it is a local government. Making can be either. Okay. So अगर कल को AMC को ऐसा लगता है कि हमारे एरिया में हमें कहीं पे TP स्कीम बनाना है, they can go ahead and make it. So making by the act. So हमारे स्टेट में जितना भी अर्बन प्लानिंग होता है, it is governed by this act called Gujarat Town Planning and Urban Development Act, GTPUDA 1976. So this act governs, and ये act दोनों को पावर देता है. AMC को भी पावर देता है, ODA को भी पावर देता है. They can make their own TP schemes.
बट मेंटेनेंस वाला जो है, बिकॉज ऑर्डा कैन नॉट कलेक्ट टैक्सेस, सो ऑफ कोर्स दे कांट गेट इनटू ऑपरेशंस। तो सो वो वाला ऑर्डर का बजट कहाँ से आता है? ऑर्डा के पास बहुत सारे बजटरी प्रोविजंस है। सो सम ऑफ देम आर, लेट्स से द परचेसेबल एफएसआई, जो हम लोग एफएसआई वाला चीज होता है। दूसरा, दे ऑल्सो टेक कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पीपल फॉर लेइंग डाउन द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन ये प्रोविजन भी एक्ट देता है। सो एक्ट प्रोविजन देता है कि लेट से ऑर्डा को कोई एक टीपी स्कीम बनाने में 100 रुपए का खर्चा होता है, तो एक्ट ये प्रोविजन देता है कि 100 में से 50 रुपए तक वो लोगों से ले सकते हैं। ओके, एंड बाकी का जो 50 रुपए बचा, वो उसको लाना है। सो देर इज अ प्रोविजन वे दे कैन रिजर्व सम लैंड पार्सल्स फॉर सेल, जिसमें से वो Okay. रेवेन्यू अर्न जो करेंगे। कॉमन प्लॉट्स होते हैं आप बोल कॉमन रहे हो? प्लॉट्स होते हैं। ओके, सो लेट से पूरा टीपी स्कीम का 5% मैंने रिजर्व किया मेरे, लाइक इफ आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्डा, कि मैंने 5% रिजर्व किया। नाउ व्हेन आई सेल दिस, आई अर्न सम रेवेन्यू। So from that revenue, I can pay for the expenses that I made while making the TP scheme. So overall, TP scheme has to be a self-sustainable model. ओके, मतलब, and so it's like, थोड़ा contribution landowner देगा, थोड़ा contribution order देगा, and that's how the full thing. so it is not run by government expenses No, at no, all. no, It's a private body you're trying to say? no. Order, मतलब it's basically, मतलब it's a contribution from both landowners as well and government as well. दोनों जगह से मिल, the point that I'm trying to say is it's a self-sustainable model. मतलब Got it. मुझे कहीं से बोरो नहीं करना पड़ेगा पैसा ये चीज करने के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंपेयर दैट विद लैंड एक्विजिशन में मुझे क्या करना पड़ेगा कि लेट्स आई नीड टू प्रोक्योर दिस पीस ऑफ लैंड, तो आई नीड मनी। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? सो इधर आई हैव टू टेक सम फंडिंग फ्रॉम समवेयर, या तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाऊंगा या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, बिकॉज लैंड इज वेरी कॉस्टली अफेयर नाउ। सो दैट्स हाउ बहुत सारे दूसरे स्टेट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन ही नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनके सबसे पहला हिंड्रेंस ये आता है कि जमीन कैसे मिलेगा। True. तो इसी वजह से गुजरात का अर्बन स्टोरी एज कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर स्टेट्स इज वेरी वेरी डिफरेंट। लाइक आई ऑल्सो डिड नॉट रियलाइज दिस। मैंने जब काम करना शुरू किया, इनिशियल 5 साल 6 साल आई वॉज वर्किंग प्रीडोमिनेटली इन गुजरात। अलग अलग काम थे बट प्राइमरीली विद इन गुजरात। जब मैं पहली बार बाहर काम करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही अलग सीन है। then you start to realize कि what you were working on, या तो kind of things that Gujarat does is very different as compared to some of the other states. So let's talk about other states you are working in. Yeah. So वहाँ का क्या, आपने गुजरात का पूरा समझा दिया. I think people are, and I am also very pretty clear about like how ORDA works, how AMC works. आपने दूसरे स्टेट्स में काम किया, जैसे आपने बोला तमिलनाडु, Yeah. राइट? सो उस स्टेट्स का एक्सपीरियंस क्या है? उस स्टेट्स में क्या कॉम्प्लिकेशंस है या क्या ईज है आपको लगता है टाउन प्लानिंग? So first and foremost, if I need to start with, see, land pooling per se, और कोई स्टेट इतना अग्रेसिवली या इतना रेगुलरली करता ही नहीं है। Their model is acquisition. या देर आर सम अदर मॉडल्स एज वेल, वो जो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। मतलब जैसे तमिलनाडु में देर इज लेआउट बेस्ड मॉडल, राजस्थान में देर इज अ सेक्टर प्लानिंग बेस्ड मॉडल, या सब जगह पर अलग अलग इसके मॉडल्स हैं। बट predominantly, if you have to say, it is acquisition based. So as soon as a master plan or a DP is prepared to lay down the infrastructure, अब मैंने DP में एक रोड बनाया, अब वो रोड बनाने के लिए आई नीड लैंड। लैंड के लिए मेरा पहला हिंड्रेंस ही एक्विजिशन है। ट्रू। तो एज अ रिजल्ट होता क्या है कि बहुत सारे मास्टर प्लान्स या बहुत सारे डेवलपमेंट प्लान्स इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाते। I was coming to that part because आप जब land acquisitions में जाते हो तो the land owners are going into legal Yes. liabilities and Yes. all, and they take a stay order from the high courts or the Yes, Supreme Court. yes. तो उस वक्त वो possible कैसे होता है जो आपने प्लानिंग किया नहीं है? हो पाता, नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। दैट्स वेयर सम ऑफ लाइक, इसीलिए लाइक आई आल्सो रियलाइज दिस व्हेन आई मूव्ड आउट एंड व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग दूसरे स्टेट्स के सिटी के प्लान्स एंड अदर थिंग। बट देन अल्टीमेटली दे ऑल other cities and other states, they also find their own solutions, but they are not as streamlined or as systematic as maybe we are working. वो फिर ऐसा होता है पीस मिल, या तो हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन फाइंड किया ना आगे बढ़े। जैसे अब ये एक रोड मुझे इंप्लीमेंट करना है, आई फाउंड सम सॉल्यूशन, वो सारे लैंड ओनर्स को बुला के
I made some adjustment and then I moved forward. दूसरा problem, again some another way of dealing with it. But there is no one systematic way of dealing with a particular issue. That's what. So let's talk about the state government. आपने जो काम किया, one state government, and आप कोट कीजिए कि क्या क्या issues उसमें हुए अपने practically, अगर urban planning में ये thought कि भाई ये issue आ गए हैं, ये नहीं होने चाहिए थे. State by state, you can say. So जैसे if I like my recent experiences are with Rajasthan. Okay. So the way okay, but if I give you थोड़ा सा लंबा background है, if I Sure. give you a lengthy background to that. Now अब ये सारे states acquisition के मॉडल से काम कर रहे थे, बट 2013 में क्या हुआ, एक्विजिशन का एक्ट चेंज हुआ एंड उसमें सोलेशियम या कंपनसेशन हम जो देते हैं लैंड ओनर को वो बहुत बढ़ गया, टू कंपनसेट द लैंड ओनर इन अ गुड वे, वो उन्होंने ऑलमोस्ट 4 times कर दिया. Okay. अब एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि नन ऑफ द स्टेट्स वेर एबल टू अक्वायर लैंड. सो देन सेंट्रल गवर्नमेंट पुश्ड all the states कि you all adopt this TP scheme या LAP based model. This I'm talking about 2018 के आसपास की बात कर रहा हूँ. 13 में एक्ट आया, 16-17 में ये issues दिखने लगे. So then they said कि okay, you all now understand this model जो गुजरात इतने सालों से कर रहा है, ये मॉडल आप ढंग से समझिए और इसको अपने अपने स्टेट्स में आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए. स्टेट्स ऑफ कोर्स लेग्ड, उतना कैपेसिटी नहीं था लोगों को, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं था, एंड टेक्निकल कैपेसिटी भी नहीं था. वहाँ के प्लानर्स ने कभी टीपी स्कीम बनाया नहीं है. सो देन दे वर लाइक हमें सिखाओ ये. सो सेप्ट यूनिवर्सिटी वाज अपॉइंटेड एज वन ऑफ द एंकर इंस्टीट्यूट कि जहाँ पर ये वर्कशॉप्स किए गए कि सारे के सारे स्टेट्स में से 4-5 लोगों का एक ग्रुप आया, उन्होंने सीखा इस चीज़ को. वंस दे लर्नड दैट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट सेड कि अच्छा अभी आप अपने अपने स्टेट्स में जाओ और एक एक टीपी स्कीम बनाओ एंड विल फंड यू फॉर दैट. आप जाके बनाओ, हम आपको पैसा देंगे एंड उसके लिए अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए बनाने के लिए, सो देन ये सेप्ट यूनिवर्सिटी का आप असिस्टेंस ले सकते. दे आस्क्ड ऑल दिस प्लानर्स फ्रॉम वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स कि आप अहमदाबाद जाओ, ये सीख कर आओ. So they all came, they went back, then they were like, then central government said कि अब आप लोग अपने अपने states में ये बनाओ and will fund you, बनाने के भी पैसे देंगे, ठीक है. So then they were like, okay, but we still need hand holding. That's where we came into the picture. So CEPT University was one of the institute के state government can ask us to help them. That's how we got associated with Rajasthan. अब to be very very frank, some of initial time में क्या होता था कि see, राजस्थान is doing urban planning in a particular way since 50-60 years. वहाँ के जो प्लानर्स है 50 साल से एक चीज कर रहे हैं, सडनली आप उसको जाके बोलोगे ये ऐसे नहीं ऐसे करो, वो भी 5 साल पहले मैं और छोटा रहा था, मैं अगर उनको जाके बोलूंगा कि आप ये ऐसे नहीं ऐसे करो, they won't. So the situation was like, if I'll have to use an analogy, कि see, we were like teachers, हम सिखा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाज लाइक पेरेंट, पैसे दे रहे हैं, they are like students who don't want to study. Okay. Understood. But irrespective of that, then there are always people, गवर्नमेंट में हमेशा 2-4 ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं who are like मतलब who are very जिनको करना है वो चीज़ है. Okay. We also found couple of those kind of people in government at that time कि नहीं ये तो करना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है and people are appreciating this model, let's give it a shot. धीरे धीरे हमने करना शुरू किया. ये मैं बात कर रहा हूँ 2022 के आसपास की. करना शुरू किया. देन उन लोगों ने ऐसा पिकअप किया. सो अगेन वन मोर स्मॉल एनेक्डोट कि 2024 के आसपास व्हेन वी वर ऑलमोस्ट डन विद द एंटायर प्रोसेस एंड हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में सबमिट करने ही वाले थे, मीनवाइल कमिश्नर ऑफ JDA चेंज्ड. Okay. So then everyone of us were like, अब पता नहीं इसका क्या होगा कैसे होगा. So then the official asked me कि आप एक बार आके एक presentation देकर जाओ because the commissioner wants to understand कि ये क्या है. So I went there, we gave the presentation and the usual, commissioner was not very interested in doing something new या ऐसा कुछ. And इससे पहले कि मैं उनके queries के कुछ answers करूं, the officials started answering her. Okay. And that was the moment ke I really felt ke now these guys have really accepted this. So that's so yeah,
So, okay. The point where we started this from कि central government asked all the states कब आप ये धीरे धीरे pooling based process चालू करो, and that's how we got associated with Rajasthan. We started working with government of Assam. We started working with Tamil Nadu, Bihar, all these states. गवर्नमेंट और आम आदमी के बीच में एक पूरा चैनल होता है, कंसल्टेंट्स का, एक्सपर्ट्स का, अर्बन प्लानर्स का, आर्किटेक्ट्स का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स का, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को शेप अप करते हैं। हम उन्हीं एक्सपर्ट्स को आपके सामने ला रहे सीधा बात करने के लिए हमारे द बिजनेस एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट के थ्रू। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये इंडिया का सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पॉडकास्ट है। आप भी अगर इस इंडस्ट्री की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं और इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान में आपने बोला कि दे वर सो अनकंफर्टेबल विद द Yeah, चेंज एट इनिशियल जब आपने शुरू किया, बिकॉज हम कभी भी राजस्थान ट्रैवल करते हैं गुजरात से तो पूरा अलग दुनिया दिखता है। Yes. वी सी कि बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड रोड्स Right. हैं, बहुत अंडर डेवलप्ड टाउन है, बट नाउ वी सी द चेंज इन Yes. राजस्थान एज वेल। अभी आपने दूसरी जो स्टेट्स में काम किया, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ तमिलनाडु। Yeah. वहां पे क्या क्या चैलेंजेस थी और कैसे आपने उसको ओवरकम किया टाउन प्लानिंग? बहुत अलग और बहुत rigorous. Like I am working in Tamil Nadu since past, again I would say 3-4 years. I have been involved in one of their studies where के state level के उनके जो regulations हैं वो हम revise कर रहे हैं. The study is led by Professor Srivatsan. He is the leading person in that, but I am assisting him and helping him with certain other things. दूसरा हमने एक उनके लिए study किया, so I'll not get into the technicalities, but like first thing that I observed there after working with many states across India, the first observation was the people or the officials in the government are very involved. Involved in the process. Okay. Like they'll ask you 10,000 questions, and they would make sure that the things so there's a proper rigorous review mechanism. There's a proper method in which, they'll ask you to do certain things, plus the way they'll expect certain things from you. Public participation, amazing. Okay. I have not seen that kind of public participation in any other state. Again, because of the education level, do you feel so? Could be. Their education level is so high compared be. to other Could parts be. of India. Could be. Well, I won't be able to pinpoint to a particular thing, but it was. So just to give you an example, while we are preparing these regulations, we were supposed to go to these multiple towns in Tamil Nadu to conduct people's meetings. The objective of that meeting was कि लोग आएंगे और उनको करंट रेगुलेशन से क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है, आके हमें बताएंगे, हम नोट डाउन करेंगे, एंड बेसिस दैट विल फॉर्म वन सेट के जिसको हमें ध्यान में लेना है. तो देन द ऑफिशियल्स आस्क्ड अस कि आप रेडियो पे जिंगल चलाओ. Okay. कि हम आने वाले हैं और इस टाइम पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे. तो हमने मल्टीपल स्टेट्स में जिंगल्स चलाए, न्यूज़पेपर में दे दिया, सब हो गया. बेसिस माई 10-12 years ऑफ एक्सपीरियंस नहीं आता है कोई. हाँ, जनरली हमारे यहाँ पर भी हम भी नहीं जाते, हम कोई भी नहीं नहीं होता है. जाते ज्यादा हैं. से ज्यादा कौन आएगा? एनजीओज आएंगे, हाँ. या तो एसोसिएशंस आएंगे कि साइकिलिस्ट का एसोसिएशन है, एनवायरमेंटलिस्ट्स का एसोसिएशन है. But very few Very few participation. participants. The halls were flooded. Oh, really? मतलब दैट वाज शॉक ऑफ माय लाइफ कि वहाँ पे लोग जितना पार्टिसिपेट करते हैं अपने प्रोसेसेस में, मतलब इट वाज हार्टनिंग टू सी. एंड वो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है. True. लाइक आप खुद सोचो कि जब आपके सामने 50 चीजें आके लोग बोल देते हैं ये ठीक करना है, सो देन योर जॉब इज डन. Exactly. कि हाँ, ये 50 चीजें मेरे को ठीक करनी है. Ultimately, they are getting benefited. Now, Exactly. whatever we are doing, हाँ, वो यूज तो वही करने वाले हैं. और जब आपको लगता है कि दे आर सो इन्वॉल्व इनटू दैट, हाँ. देन प्लानिंग और ये करना इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, पैशन बन जाता है. And then you also get कि यार I'm answerable, to True. these people. So I think one thing about that state that I liked really in terms of working is the government officials से लेके everyone, they are involved in their processes, very much involved. Like they would want to be, part of everything that happens there. कौन सी प्रोजेक्ट पे आपने तमिलनाडु में काम Tamil किया? Nadu में we worked on multiple things. So first a little technical thing which was about land value and density distribution study. Okay. अगर मैं इसको थोड़े easier शब्दों, this study was led by हमारे उस टाइम पे जो सेंटर हेड थे अवनीश पेंडारकर. Okay. He is an urban designer and urban planner. He led this study. So इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर बताऊं तो जो लैंड वैल्यूज हमारे सिटी में बढ़ती हैं True. किसी भी एरिया की, उनका
किन चीज़ों पर निर्भरता होती है? What are the factors that affect the land values? लैंड वैल्यूज. Is it the population? Is it the infrastructure? Or is it something else? कि जॉब सेंटर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं, क्या है? So that was one study. सेकंड इज जैसे हमारे यहाँ गुजरात में CGDCR है, ऐसे तमिलनाडु में एक डॉक्यूमेंट है TNCDBR, उनका Okay. स्टेट लेवल का रेगुलेशन, उसका हमने रिवीजन रिव्यू किया एंड रिकमेंडेशन किया. थर्ड इज करंटली वी आर वर्किंग ऑन प्रिपेयरिंग सम, दिस वेयर विद CMDA, Okay. चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी. राइट नाउ वी आर वर्किंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जिसमें वी आर प्रिपेयरिंग रेगुलेशंस फॉर हिली एरियाज. Okay. So Tamil Nadu के there are this couple of districts along Kerala and Karnataka border के which are hilly, जो ऊटी and वो जो सारे areas है Western Ghats वाले. So they wanted a separate set of regulations for these areas because they are hilly and because they are environmentally sensitive and fragile. They can't be put under the same regulations. Okay. So that we are preparing. And one more assignment we are doing for them is they are taking an exercise where they are getting 100 towns के मास्टर प्लान एक साथ बनवा रहे हैं, Okay. अलग अलग कंसल्टेंट्स के थ्रू, 100 futuristic towns. फ्यूचरिस्टिक टाउन्स. बट नाउ व्हेन दे विल ऑनबोर्ड अलग अलग कंसल्टेंट्स को जब ऑनबोर्ड करेंगे तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट. So that is where we came into picture and we said that we'll prepare a standard operational procedural kind of a document for you which becomes a bible kind of a thing कि ये चीजें करनी है एक मास्टर प्लान बनाने में. And So it can be applicable to every. All the consultants and all the towns. So these are the things we are working So here right now. तमिलनाडु का अगर मुझे डेवलपमेंट में अगर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा किस्सा याद आता है तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. और बहुत बड़ा एक कियोस हुआ था ईशा आश्रम को लेके, आपको पता है सदगुरु के, Right. कि जब उन्होंने लैंड एक्वायर किया था तो हाँ. बहुत सारा वाइल्ड लाइफ लैंड एक्वायर हुआ था जहाँ पे कॉरिडोर पास हुआ था एलिफेंट्स के लिए. Right. Right. वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन एक्चुअली मनाई होती है जहाँ Right. पे आप Elephant एनिमल के movement के मूवमेंट corridors हैं. कॉरिडोर्स होते हैं वहाँ पे. तो ऐसे कोई इश्यूज आपको लगता है आए हैं वहाँ पे तमिलनाडु में, क्योंकि बहुत डेंस फॉरेस्ट है तमिलनाडु Yeah. में. So ये जो हिली एरिया का डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर ये सारे कंसिडरेशंस आए थे एंड वी हैव लाइक प्रॉपर्ली कंसिडर्ड देम एंड प्रिपेयर्ड द रेगुलेशंस अकॉर्डिंगली. मतलब ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं हुआ कि जहाँ पर ये अलग से हमें इसका कुछ ध्यान रखना पड़ा हो या ऐसा कुछ, बट इट्स लाइक पार्ट ऑफ द वर्क. तो क्या आप ध्यान रखते हो जब वहाँ पे ऐसे एनिमल कॉरिडोर्स गुजरते हैं, अगर आपका कोई डेवलपमेंट आ रहा है वहाँ पे, आपको पता है कि एनिमल कॉरिडोर है, एनिमल माइग्रेशन पाथ है, सो वहाँ पे व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस यू अप्लाई टू अर्बन प्लानिंग? उसके बफर्स होते हैं Okay. डिफाइंड बाय MOEF के बफर्स हैं. एंड प्लस उसमें एक और ट्रिकी चीज ये होता है कि इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस द थ्रू आउट द ईयर. Okay. बेसिस द सीजन इट चेंजेस. Hmm. मॉनसून में अलग होगा, विंटर में अलग होगा, समर में अलग होगा. सो ये डेटा हम प्रोक्योर करते हैं रिलायबल सोर्सेज के पास से, डेटा के अकॉर्डिंग देन MOEF के और अलग इंटरनेशनल भी गाइडलाइंस होते हैं, वो गाइडलाइंस लेते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग जब भी कभी उस एरिया के रेगुलेशन बनाते हैं तो देन यू डिमार्केट देम एज नो डेवलपमेंट जोन्स या कंजर्वेशन जोन्स सो दैट दे रिमेन ऑफ द सिटी लिमिट्स. बट पहले से ही आप ध्यान रखते कि नो कंजर्वेशन या नो डेवलपमेंट जोन्स जो है, कंजर्वेशन जोन्स है वहाँ पे आप डेवलपमेंट ना करें Right. और बाकी का एरिया चूज Right. करें. तो हिली एरिया में डेवलपमेंट की क्यों जरूरत होती है आपको लगता है? बिकॉज ट्राइबल्स रहते हैं वहाँ पे, राइट? Right. ज्यादातर तो ट्राइबल्स ही रहते हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट का इतना नेसेसिटी क्यों होता है गवर्नमेंट को? सो गवर्नमेंट को नहीं है, मतलब इसका आई डोंट नो, मतलब आई डोंट हैव अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, बट आई थिंक इट्स लाइक अ चिकन एंड एग काइंड ऑफ अ थिंग कि बिकॉज वो एरिया डेवलप हो रहा है एंड वो हैफिजार्ड तरीके से डेवलप नहीं हो, यू वांट पीपल टू डेवलप दैट विद सर्टेन कंसिडरेशंस. अमित, ये हर एक गेस्ट से मैं पूछती हूँ बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद चाइना सिंस पास्ट 10-12 इयर्स, और वहाँ का डेवलपमेंट जो मैंने 12 इयर्स में देखा है, उनके टाउन प्लानिंग्स देखे, उनके इंडस्ट्रियल एरियाज देखे, उनका पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इज इक्विवेलेंट टू इंडियाज पॉपुलेशन. तो वहाँ पे उनका जो टाउन प्लानिंग एंड एवरीथिंग इज देयर, सो एवरी स्टेट वाइज दे हैव द सिमिलर रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो हमारे पास इंडिया में हर स्टेट के लिए सिमिलर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों नहीं है? So that goes back to the the fundamental way we are governed. Like they follow an autocratic government culture vis-a-vis we follow a democratic
गवर्नेंस कल्चर के, जिसमें सो वी हैव दिस 3 लिस्ट्स, सेंटर का है, स्टेट का है, कंकरेंट है. सो अंडर विच सम ऑफ द मेजर थिंग्स लाइक डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें सेंटर ध्यान रखता है. उसके अलावा सेंटर ने बोल दिया कि अब आप बाकी की चीज़ें जो है स्टेट को बोला आप अपने हिसाब से करो, यू नो, जिसको जो प्रीडोमिनेटली जिस तरीके से ठीक लगता है, यू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स, बट बीइंग डेमोक्रेटिक. So that I say, well, I'm not giving this as an excuse ke why we are not there. We should be there despite this model. Okay. So don't. Well, I would never, as an urban planner, I would never like to take this or give this as an excuse. कि हम क्यों, कि because of the way we are governed, you know, the difference lies. So we should be there. But then, you know, there are certain other things, technological चीजें हैं, governance की चीजें हैं, institution के related जो चीजें हैं. So we are still catching up. You know, like what I shared with you during the break, कि हमें अभी अर्बनाइज होते हुए या तो अर्बनाइजेशन का इम्पोर्टेंस समझते हुए 20-30 साल ही हुए हैं. अच्छा. You know, though we are independence is past 70 years or more, but primarily, like, you know, we have heard, when we got independence, we always heard this कि India lives in its villages. You know, India अपने गांवों में बसता है. हमारा इकोनॉमी भी एग्रेरियन बेस्ड था, and that's how we were living. But it is this post liberalization 1991 के बाद जब इकोनॉमी खुला, then cities suddenly, मतलब एक जो बूम आया है, तो वो इकोनॉमी आगे बढ़ गया, शहर बड़े हो गए, लोग शहरों में आ गए, बट हमारा शहर अभी भी उसको वो प्रोवाइड करने में कैचअप कर रहा है. यू नो, एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं जब भी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ होता हूँ या इवन विथ माई वाइफ, सो शी ऑलवेज कंप्लेन्स. जब भी कभी हम अहमदाबाद में कहीं से भी निकलते हैं ना, या तो किसी ब्रिज का काम चल रहा होता है या मेट्रो का काम चल रहा होता है, कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है. सो विथ हर और इवन विथ माई फ्रेंड्स, दे कंप्लेन अबाउट दिस थिंग. बट आई सी दिस फ्रॉम द अदर साइड. फॉर मी इट इज ऑलवेज लाइक कि यार हम अडेप्ट कर रहे हैं, हम कैच कर रहे हैं, यू नो, कि हम वहीं के वहीं नहीं है. सो फॉर आई सी दिस एज अ साइन ऑफ डेवलपमेंट, कि हम कॉन्स्टेंटली वी आर परस्यूइंग अहेड, कि हम सोच पा रहे हैं कि ये रोड पे अभी जितना ट्रैफिक है ना, 5 साल के बाद और ज्यादा होगा. सो इट इज इंपॉर्टेंट, लेट्स मेक अ फ्लाई ओवर हियर. एग्जैक्टली. यू नो, हम सोच पा रहे हैं कि आज जितने लोग यहाँ रह रहे हैं 5 साल के बाद और ज्यादा होंगे, मे बी हमें मेट्रो का जरूरत होगा, चलो डाल देते हैं. सो या मतलब आई अग्री विद दिस फैक्ट के वो कैचअप थोड़ा और ज्यादा अच्छे पेस पे, थोड़ा और ज्यादा अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए. एंड देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, बट वी आर कैचिंग अप. मैंने एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा था अभी ब्रेक में कि हमारी जो सिटीज है ना, दे आर वेरी क्राउडेड. अब बैंगलोर ले लीजिए, अभी अहमदाबाद भी वो रेस में आ रहा है, पुणे ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए. सो जहाँ पे डेवलपमेंट, वहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड हो रहा है इंडिया में. इन द अदर एरियाज वेयर यू सी देयर इज नो डेवलपमेंट, देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके सो द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग, इसके प्लानिंग के थियरीज होते हैं. ओके. सो मे बी इफ आई ट्राई एंड आंसर थ्रू दैट, कि यू आर रेजिंग अ वेरी करेक्ट पॉइंट. अब मैं अगर आपको इसको थोड़ा लेमन या थोड़ा सिंपल तरीके से समझाऊं, सी एवरीवन, हर किसी का शहर में आने का मोटिव क्या है? एम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. सिंपल. अगर उसको वो अपॉर्चुनिटी जहां रह रहे हैं वहीं मिल गई तो नहीं आएगा. एग्जैक्टली. राइट. सो दैट इज वेयर, दैट इज टुवर्ड्स विच वी आर वर्किंग नाउ. बिकॉज हमने, लाइक आई कंटिन्यू फ्रॉम माई प्रीवियस आंसर, हमने ये रियलाइज अब किया है कि अगर ऐसे ही शहर बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, हर कोई अगर शहर में ही आता रहा, तो देन हमारे पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो शहर को हम उस लेवल पर लेके जा सके. सो देन क्या आंसर है? वो जहां रह रहा है वहीं पर उसको वो अपॉर्चुनिटी दो. दिस इज वन थियरी. सेकेंड थियरी एक ऐसा है, जैसे अहमदाबाद है. अहमदाबाद अगर न्यूक्लियस टाउन है या मदर टाउन है, इसके आसपास के जो पेरीफेरी में जो छोटे वाले टाउन्स हैं, लाइक इफ आई स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट के साणंद है, यू नो, साउथ में बावड़ा है, ईस्ट में मे बी कलोल, सॉरी नॉर्थ में है, या ईस्ट में मे बी कोई और टाउन है. अगर ये टाउन में भी इनफ प्रोविजंस हो जाए, नंबर 1 के एक लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर है और लाइफस्टाइल आपका वहां पर अच्छा है, एंड नंबर 2 मेरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना एफिशिएंट हो कि अगर किसी को साणंद से एसजी हाईवे पे अगर उसका जॉब है, अगर उसको कम्यूटिंग करने में 30 या 35 मिनट से ज्यादा नहीं लग रहा हो, या मैक्स 40-45 मिनट से ज्यादा नहीं लग रहा हो टू एंड फ्रो, एंड अगर वो हैसल फ्री है, तो भी वो नहीं आएगा.
सो दिस इज अनदर थियरी वेयर सैटेलाइट टाउन्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि एक न्यूक्लियस टाउन के आसपास जो सैटेलाइट टाउन्स होते हैं उनको हम अपग्रेड करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं और उनको मेन सिटी के साथ इस तरीके से कनेक्ट करें कि वो बंदा या द पर्सन डज नॉट नीड टू कम टू अहमदाबाद एंड लिव हियर एंड टू कंजस्ट द सिटी. So yeah, we are working towards that. सो यू पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट कि शायद इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है हमारा, या कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी नहीं है, इसकी वजह से ये क्राउड हो रहा है टू पर्टिकुलर सिटीज. One of the reason. मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल्स में बताती हूँ. जैसे आप यूएस में न्यूयॉर्क देखिए, एलए देखिए, लॉस एंजलिस देखिए, न्यू जर्सी देखिए. सो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, यू नो, इन पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर, दे कम टू द ऑफिस बाय ड्राइविंग माइल्स. सो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनको ये अपॉर्चुनिटी या उनको ये फ्रीडम देता है कि दे कैन टेक देयर कार एंड दे ड्राइव थ्रू द माइल्स, और वो यहाँ पे आके काम करके शाम को वापस जा सकते हैं. बट शायद इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, एलए देखिए, वहाँ पे अगर आप पॉपुलेशन देखिए तो बहुत ज़्यादा डेंस है. एंड दैट इज वाई वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप किया गया कि यू डोंट लिव हियर, यू लिव टू द नियर बाय यू नो कंट्री साइड्स एंड ट्रैवल एंड वर्क देयर. तो ये इंडिया में अभी पॉसिबल नहीं हो So पा रहा that's what we are aspiring for. है. Okay. And we are working towards, like that's the short answer, because like वो comparison अभी इतना fit, मैं शायद इसको इतना fit इसलिए नहीं मानूंगा. Again going back to the same thing, हमने जो urbanization या उसके लिए काम करना जो शुरू किया उसको 20 साल हुए. They have been doing this since past 100 years. 100 years, true. तो वो comparison वहां पर थोड़ा सा off है, right? But that's what we should aspire for. Exactly what you are saying, that's what we should aspire for. कि अगर कोई कहीं पे रह रहा है, वहां से वो इजीली 40-45 मिनट में अपने वर्क डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, काम करके वापस वो चला जाए. एंड इट शुड बी एज हैसल फ्री एज पॉसिबल. ट्रू. तो उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का होना पब्लिक चाहिए. ट्रांसपोर्ट, सो टू से, प्रीडोमिनेंटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइमरीली, बिकॉज वही एक चीज है जो वो ट्रैवल टाइम को आपका, लाइक अभी आज की डेट में फॉर एग्जांपल अहमदाबाद का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि वेस्टर्न पेरिफेरी ले लो, सोबो ले लो, सोबो से आप ईस्टर्न पेरिफेरी ले लो, कठवाड़ा या कठवाड़ा के बियॉन्ड कुछ ले लो. if you don't go by ring road, but if you have to cut through the city, you know, you'll easily take 1.5 hours. True. Even by public transport. True. वो आप जितना बेटर कर पाओ. क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं अगर हमें इसको बेटर बनाना है? तो अर्बन प्लानिंग में इतने क्या क्या प्रोविजंस है जहाँ पे हम ऐसे रूट्स यू नो क्रिएट कर सकते हैं व्हिच कैन रिड्यूस आवर ट्रैवल टाइम? मतलब मेरा इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, मतलब देयर विल बी बेटर. जनरली आपका कोई जनरल जो आइडिया आपका. बट मेरा जो बेसिक लेवल पे, लाइक एज एन अर्बन प्लानर, द वे आई कैन कमेंट इज के फाइंड आउट मल्टीपल मोड्स ऑफ फिटिंग अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिकॉज हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक ही आंसर नहीं है. जैसे लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए यू माइट नीड अ मेट्रो और अ बीआरटी, शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए यू माइट नीड एन ऑटो रिक्शा या शॉर्टर बसेस, एंड देन फाइनली लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बेटर वॉकेबिलिटी या शेडेड वॉकवेज या वो वाली सारी चीजें. एंड ये सारी चीजों का एक बहुत अच्छा इंटीग्रेशन, लाइक अगेन आई नॉट अ वेरी एप्ट एग्जांपल और एन एनालॉजी, बट आई विल गो बैक टू, आई रिसेंटली विजिटेड सिंगापुर. ठीक है, पूरा 7 दिन 8 दिन आई ट्रैवल्ड ओनली एंड ओनली थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट. व्हाई? बिकॉज इट वाज इजी फॉर मी. लाइक राइट फ्रॉम माय होटल में जब बाहर निकलता हूँ, वहां से सबसे पहले कौन सा मेट्रो या कौन सा ट्यूब कैसे जाएगा वो ढूंढना मेरे को ऐप पे मिल रहा है. वहां से मेरे को बस स्टॉप अगर कनेक्ट करना है तो वो मेरे स्टेशन के बाहर ही बस स्टॉप भी है. वहां से मैं जहाँ फाइनली उतर रहा हूँ, वहां से जो मुझे चल के जाना है वो भी इतना डिस्टेंस नहीं है, 300-400 मीटर में आई एम रीचिंग माई फाइनल डेस्टिनेशन. तो ये जितना वेल इंटीग्रेटेड हो, लोगों के लिए उसको एक्सेस करना जितना आसान हो, तो पीपल ऑटोमेटिकली विल शिफ्ट. मतलब नो वन वांट्स टू, एटलीस्ट मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारे एटलीस्ट अहमदाबाद में तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि अगर लोगों को एक्सेस दिया जाए अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, एंड अगर ये चीजें अच्छे से इंटीग्रेटेड है, आई डोंट सी व्हाई वुड पीपल नॉट यूज इट. Okay. यू नो, अगेन अनदर सुपर्ब एग्जांपल, बीआरटी सक्सेसफुल है अहमदाबाद में, बहुत अच्छे से चल रहा है, जो बहुत सारे शहर नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए. तो दिस इज एन एग्जांपल व्हिच शोज दैट पीपल डू वांट टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, but it has to be like integrated with other transportation modes and it has to cater to one's needs. बीआरटी का आपने एग्जांपल दिया इनटू अहमदाबाद व्हिच इज सक्सेसफुल क्योंकि उसके रूट्स बहुत अच्छे से डिजाइन हुए हैं. दैट व्हाट आई फील एज एन इंजीनियर. उसी हिसाब से अगर हम मेट्रो देखें,
I feel metro has not been pre-designed well. एक बहुत बड़ा इश्यू एज अ पार्किंग कंसल्टेंट मैंने मेट्रोस पे देखा हुआ है, इस मेट्रो के स्टेशन पे पार्किंग नहीं डेवलप किए Right. गए, और वो इश्यू की वजह से मेट्रो का डेवलपमेंट इतने साल से रुका हुआ है Right. अहमदाबाद में. सो जब हम अर्बन प्लानिंग की, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्बन प्लानिंग, तो शायद ये ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स भी उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, और दैट इज अ सेपरेट Yeah, सब्जेक्ट ऑफ दैट. सेपरेट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ. बट मेरे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर मैं इसका आंसर दूं, आई थिंक वी आर लिटिल अर्ली इन एनालाइजिंग या कमेंटिंग ऑन मेट्रो, ओके. बिकॉज इसका सक्सेस जब ये थोड़ा इंटीग्रेट होगा या इसके फेज 2 फेज 3 जब आएंगे ना, तो देन इट वुड बी बेटर टू कमेंट ऑन दैट. बिकॉज अभी लाइक यू आर सेइंग, यू नो, एक तो लाइन जो है वो बहुत लिमिटेड लिमिटेड. वे में सर्व कर रहा है सिटी को. उस वजह से मे बी, यू नो, इट इज लिटिल अर्ली टू. नहीं, क्योंकि मैं मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ 10 साल से कनेक्टेड थी, आई हैव बीन टॉकिंग टू द अथॉरिटीज आल्सो, तो वो उनको एक पॉइंट जो उन्होंने ओवरलुक किया वो था पार्किंग एट द मेट्रो स्टेशन. लास्ट माइल कनेक्टिविटी सीधा अफेक्ट करेगा आपका, क्योंकि मेट्रो कौन यूज करेगा? वो कोई यू नो टूरिस्ट तो यूज नहीं करेगा, जो डे टू डे Local यूज लोग. करे, लोकल लोग यूज करे और अपने वर्क प्लेस के लिए यूज कर रहे, तो उनके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी अगर नहीं है ना, तो मेट्रो का कोई यूज ही नहीं बन रहा है. हाँ. तो अगर आपने पार्किंग्स प्लान नहीं किए हर एक मेट्रो स्टेशन में, जहाँ पे आप अपना व्हीकल पार्क करके यू कैन टेक दैट मेट्रो लाइन एंड कम बैक एंड टेक योर व्हीकल एंड गो टू होम, हाँ. तो वो चीज वहां पे बड़ा अफेक्ट हो रहा है अभी. और दिल्ली मेट्रो आप अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो बहुत सक्सेसफुल है. Yeah. तो हम जब वो एक मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे लगता है कि सेंट्रलाइज्ड यू नो सिचुएशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है. जगह अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को देखें Yeah. कि अगर सेंट्रलाइज्ड एक उसके यू नो बीओक्यू है या एक सेंट्रलाइज्ड उसका एसओपी है कि इतना 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 करना है, तो आई थिंक वो प्रोजेक्ट में ऐसे लूप होल्स नहीं रहेंगे. आई फील सो. Agree, but now मतलब again I don't have an expertise in this, but because आपने दिल्ली का एग्जांपल लिया, तो वहां पर भी मेरे ख्याल से इट इज दैट वो लास्ट में वो जो ऑटो चलता है ना मेट्रो स्टेशन से लेके, आई थिंक दैट इज व्हाट इज मेकिंग दैट डिफरेंस. ऑल्सो देयर पार्किंग्स, along with टू parking. व्हीलर्स Okay. पार्किंग्स है, फोर व्हीलर्स Correct. पार्किंग है, So then आप of पास course. ले सकते हो Yeah. वहां पे. और यहाँ पे अहमदाबाद में ये डिले ही इस वजह से हुआ. मेट्रो लाइंस आर डिफाइंड, सारा रूट्स डिफाइंड है, बट लास्ट माइल कनेक्टिविटी का लूप होल रह गया. Right. और अभी उसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी को अगेन यू नो रिपेयर करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जहाँ पे मेट्रो स्टेशन से दे आर अगेन क्राउडेड एरियाज, और वहाँ पे एफएसआई भी ज्यादा बढ़ा दिए. Right. Right. So, आपने एफएसआई बढ़ा दिए तो कंस्ट्रक्शन उतने हाई हो गए. Right. अब हाई हो गए तो आप जगह कहाँ से लाओगे उसकी? सो ये सारे लूप होल्स मुझे लगता है कि जो छूट जाते हैं ना इन छोटी छोटी चीजों में, वहाँ पे एक सेंट्रलाइज लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन होना चाहिए. सो लाइक यू नो कंसिडरिंग दैट, अगर मैं अर्बन प्लानिंग की आपको बात करूँ, तो स्टेट लेवल पे आपके हिसाब से, आई एम टॉकिंग हाइपोथेटिकली, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सेंट्रल लेवल पे शायद अगर होती डिफाइंड फॉर द अर्बन प्लानिंग, तो सारे स्टेट्स अच्छे से उसको यू नो फॉलो कर पाए? नहीं, so again if we go back to some of the basics, you know, the discussions with which we started, कि एक जो हायरार्की ऑफ प्लान्स होता है, you know, वो अभी हर स्टेट में अलग अलग मॉडल है उसका. So maybe if that can be, but I don't know. See, me as a planner, like मेरा हमेशा ये personal opinion रहा है, like if I go by my theory, ये चीजें ऐसी है ना कि इसमें जितना standardization आप कम करो, it works better. Okay. It has to be contextual. Okay. मतलब प्लानिंग पर से एक ऐसी, लाइक इवन मेरे को तो पर्सनली आई वुड गो टू एन एक्सटेंट के रेगुलेशंस भी स्टेट लेवल पर नहीं होने चाहिए. अच्छा. Regulation should be very very contextual to a particular city or to a particular town, up to an extent to a particular area. You know, like going back to again some of the developed nations examples, like I visited London couple of years back. वहाँ पे plot level based regulations are, not even area level based. You know, so then these are the things that define कि कितना लेवल का अर्बन प्लानिंग उनका मैच्योर है. सो अल्टीमेटली दैट शुड बी द एम. इट शुड बी एज कॉन्टेक्चुअल as possible. It remains with the ULB. It remains, you know, people are able to plan at. So for me, maybe, I don't know if I can answer your question. Capacity building, you know, at ULB level and state level is something that central government can really push for. कि जितने ज़्यादा टेक्निकली क्वालिफाइड अर्बन प्लानर्स, ट्रांसपोर्टेशन प्लानर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानर्स, हाउसिंग प्लानर्स, या जो भी स्पेशलाइज्ड प्लानर्स हैं, जितने ज़्यादा सिस्टम में आ सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें,
इतना ज़्यादा सिस्टम बेटर होता जाए। सो मैं ये समझना चाहती हूँ अमित आपसे कि आपने बोला कि अगर अर्बन प्लानिंग का बात है, अगर लंदन है तो उसने माइक्रो लेवल पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया है एज फार एज द अर्बन प्लानिंग इज कंसर्न। माइक्रो लेवल पावर डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हो और अभी मेगा लेवल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें आप क्यों माइक्रो लेवल को फेवर करो? जस्ट बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज और बिकॉज ऑफ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की वजह से, या फिर जो यू नो नहीं, बिकॉज गो सिग्नल्स नहीं मिलते काम करने नहीं के नहीं लिए? बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज? no, because the problems are contextual. Problems are very very contextual. Like even within Ahmedabad, let's say SBR पर hypothetically, let's say SBR का traffic का problem versus Relief Road का traffic का problem. These are two very different problems. True. You can't have one solution. ये तो मैं बिल्कुल माइक so because the problems are contextual, solutions या solutionaries also have to be contextual. You can't अब मान लो इसका मैं एक हाइपोथेटिकली सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे एक रूल बना दूं कि 30 मीटर का अगर आपका रोड है तो यही सेक्शन बनाओगे, वो नहीं चलेगा, तो उसका नीड अलग होगा। एक 30 मीटर का रोड विच गोज फ्रॉम लेट्स से एसजी हाईवे टू एसपी रिंग रोड वर्सेस दूसरा 30 मीटर का रोड विच मे बी गोज फ्रॉम सीजी रोड, यू नो, कि जिसके दोनों साइड रिटेल है। वो दोनों 30 मीटर का नेचर ही अलग है। एक का काम है ट्रांजिट देना, दूसरे का काम है रिटेल सर्व करना। तो इसको कैसे स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे बनाओगे? इसके लिए गाइडलाइंस है, इसके लिए रूल्स। सो दैट्स वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम कि बिकॉज प्लानिंग के प्रॉब्लम्स इतने कॉन्टेक्चुअल होते हैं, इसके सॉल्यूशंस भी कॉन्टेक्चुअल ही होने चाहिए। ऑफ कोर्स दे कैन बी सर्टेन सेट गाइडलाइंस, कुछ कुछ बेसिक्स इस टाइप के चीजें आप कर सकते हो कि भाई हर शहर या हर स्टेट को एक मास्टर प्लान या डेवलपमेंट प्लान कंपलसरी बनाना है, यू नो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए माइक्रो लेवल प्लान्स बनाने हैं। ये चीजें आप बोलो, देन डोंट गेट इनटू कि ये ऐसे ही बनाना है, इसको यही करो, उसको वही करो, बिकॉज नो, वहां पर भी जो इंसान बैठा है उसको भी नो हाउ नहीं है। अहमदाबाद का नीड अलग है, नासिक का नीड अलग है, जयपुर का नीड अलग है, वेदर अलग है, ज्योग्राफी अलग है, लोग अलग हैं। तो देखो इट्स वेरी नेसेसरी कि ये जितना कॉन्टेक्चुअल एंड जितना डिसेंट्रलाइज रहे उतना बेटर। Okay, coming back to the first thing which we are talking about before starting the podcast was कि आपने बोला कि पहली बार सेंट्रल लेवल से एक बजट अलोकेट हुआ है प्राइवेट अर्बन प्लानर्स को हायर करने के लिए। राइट। उससे पहले शायद अर्बन प्लानर्स हायर्ड नहीं थे अर्बन टाउन प्लानिंग के लिए या अर्बन प्लानिंग के लिए। तो आपको इसके बेनिफिट्स क्या लग रहे हैं और क्यों लग रहा है आपको कि सेंट्रल लेवल पे ये डिसीजन आया है? सो दिस स्टार्टेड फ्यू इयर्स बैक कि अर्बन रिफॉर्म्स करके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड फंडिंग वेरियस स्टेट्स टू टेक अप अर्बन प्लानिंग रिलेटेड असाइनमेंट्स, एंड धीरे धीरे ईयर बाय ईयर हर साल इसका बजट बढ़ता ही जा रहा है। सो इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक अराउंड 2021 के आसपास फॉर द फर्स्ट टाइम आई रेड अबाउट इट एंड आई गॉट द पेपर के अर्बन रिफॉर्म्स करके, एंड उस टाइम पे कुछ 6000 CR या ऐसा कुछ इसका बजट प्रोविजन था, विच आज की डेट में दिस हैज रीच्ड ऑलमोस्ट अप टू मोर देन 25,000 CR, right? So there are multiple things under which a central government is funding. One of the major thing that central government is funding under this is resources. तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स को और अथॉरिटीज को बोल रहा है कि यू हायर प्लानर्स, 20 प्लानर्स, 30 प्लानर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अंडर योर डिपार्टमेंट, have them with you for 2 years, 3 years, and you give us enough data, enough information, and we will provide you for their salaries. Okay. इससे इतना एम्पावरमेंट मैंने खुद ने पर्सनली देखा है। लाइक आई हैव बीन क्लोजली वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ आसाम, जिसमें दे ऑनबोर्डेड ऑलमोस्ट 20-25 अर्बन प्लानर्स। सेम गोज इन तमिलनाडु, दे ऑनबोर्डेड सम 20 to 25 अर्बन प्लानर्स, यू नो, अंडर दिस स्कीम। एंड उस वजह से उस ऑफिस का जो पूरा एक, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, जो वाइब होता है ना, बहुत चेंज हो जाता है। यू सडनली सी दिस 20-25 फ्रेश प्लानर्स, यू नो, वहां पे काम कर रहे हैं, दे प्रोड्यूस समथिंग न्यू एंड नई नई डिस्कशंस हो रहे हैं, नए टॉपिक्स के बारे में बातें हो रही हैं। सो एक वो जो टिपिकल गवर्नमेंट ऑफिस का आपके दिमाग में एक वो जो इमेज होता है ना, सडनली इट ब्रेक्स एंड यू सी दिस न्यू एनर्जी, यू नो, लोग नई बातें कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं। सो आई थिंक इट इज ट्रेमेंडसली हेल्पिंग।
We wish by next 5 to 10 years, India become one of the developed countries which has good urban planning development, अच्छे towns ho, smart cities. So we wish for that. That was my 1 hour with you. Sure. So I would like to conclude this session with a rapid fire question. It is a very interesting session, which I feel. So you have to quickly answer my question. You Sure. don't have much time to think about Okay. it. Whatever comes promptly, you have to answer me, Right. right? So my first question to you, Amit, is favorite city in India for its road layout? Jaipur Jaipur? and Ahmedabad. Okay. Flyovers or underpass? Better solution कौन सा है? None. None? None. Okay. Teaching students or advising government? ज़्यादा challenge क्या है? कहाँ है? Both. Yeah, both. सबसे मुश्किल स्टेट जहां आपने स्टैट्यूटरी प्लानिंग की? मुश्किल तो नहीं, बट आई वुड से कि जहाँ बहुत बेसिक से हमने चीज़ों को बदला है और वो सारी चीज़ें की है, आई वुड लाइक टू से बिहार. गूगल मैप्स या फिजिकल सर्वे मैप्स? नाउ गूगल मैप्स आर ऑल्सो इक्वली इक्विप्ड एंड दे आर लाइक बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा कर दिया है. सो ओके, थोड़ा एलोबरेटेड आंसर. If I have lesser time and resources, Google Maps. If I have time and resources, physical survey maps. Okay, nice answer. अगर आप टाउन प्लानर नहीं होते तो क्या होते? I don't know. So my, as I said at the beginning, I'm an accidental urban planner. So my thing was dentistry, but thank God I didn't go there. Okay. एक चीज जो हर इंडियन रोड से हटा देनी चाहिए? हटा देनी चाहिए ये नहीं कहूँगा, but maybe what we should add is the multi-utility zones. Okay. Like we should not look at roads only and only for vehicles. They are for people, and we as a community, we as people, हम चाहे कितना भी कर ले, वो along the road वाला हमारा nature रहेगा ही रहेगा, informal setup रहेगा ही रहेगा. So there should be this dedicated zones along the roads where people can get involved into multiple activities. Like for example, SG highway. That's a very good example कि जहाँ पे under the HT line, we have these things. And Multi-utility. yeah, it defines our culture as a city. So yeah. As a planner, your biggest frustration? Timelines, because we typically get involved into work के जिसका implementation हम नहीं देख पाते हैं, unfortunately. Like being in some other profession, आपको पता है कि 2 साल 3 साल के अंदर अंदर you will see the thing in front of you. हमारे प्रोफेशन में इट्स वेरी रेयर टू सी कि हम कुछ रिकमेंडेशंस दे रहे हैं या कुछ नई चीज़ें बता रहे हैं, वो वहीं पे हमारी आंखों के सामने ही शेप ले. तो या दैट्स समथिंग. फ्यूचर आपको क्या लगता है, कार्स कम होंगी, प्राइवेट व्हीकल्स कम होंगे या ज्यादा? आई विश के कम हो. या विश ये है कि जितना कम हो सके उतना बेटर है. वॉकिंग फ्रेंडली इंडिया, रियलिटी या ड्रीम? Walking friend. So my take is little different here. Mera like see, that's technically a very desirable thing, but I don't think the climate supports that. Like True, walking very friend. true. So short distances, yes. 200 मीटर 300 मीटर के मेट्रो स्टेशन से ऑफिस जाना, मेट्रो स्टेशन से घर जाना, बस स्टॉप से कहीं जाना, 200-300 मीटर का जो वो चीज़ है, सो फुटपाथ्स एंड ऑल दोस थिंग्स. बट वॉकिंग सिटीज per se, like I don't think our climate Allows supports that. Thank you so much. Thank you so much. Amit, Thank that you. was a very insightful question. I think हमारे viewers को भी बहुत अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट. आपको अमित को फिर से देखना है तो प्लीज हमें कमेंट में बताइएगा, बिकॉज मुझे ये सेशन बहुत अधूरा लग रहा है. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हैं, बट आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही पॉडकास्ट और अर्बन प्लानर्स को आपसे इंट्रोड्यूस करवाते रहे, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज लेट अस नो आपको ये एपिसोड कैसा लगा. थैंक यू.